అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मर्षि चक्रवर्ती राघवराव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को फिर से धन्यवाद करते हैं। మనం గత 85 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయం మీద చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 85 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈరోజు 86వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 86वां है। ఈ సందర్భంగా इसी संदर्भ में బ్రహ్మ జ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. ब्रह्म ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। ఇందులో ఈ వేదాలు, इनमें ये वेद వాటి సారం అయినటువంటి మహావాక్యాలు, और उनका सारांश ऐसा महावाक्य, ఇది బ్రహ్మ జ్ఞానంలో పార్ట్ 5 అవుతుంది. क्षमा कीजिए, आज का यह ब्रह्म ज्ञान का 5वां एपिसोड है। ఈ వేదాల్లోని మహావాక్యాల యొక్క అర్థము ఈరోజు తెలుసుకుందాం. वेदों का महावाक्यों का अर्थ आज हम विस्तृत रूप में समझेंगे। ముందు ఆ మహావాక్యాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. पहले ये महावाक्य कौन से है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। యజుర్వేదంలోని यजुर्वेद में का బృహదారకోపనిషత్ बृहदारकोपनिषद నుంచి వచ్చిన మహావాక్యం में से आया हुआ महावाक्य ఏమిటంటే అది वो ये है, అహం బ్రహ్మాస్మి. अहम ब्रह्मास्मि। అంటే ఆ బ్రహ్మే నేను. मतलब वह ब्रह्मा ही मैं हूँ। రెండో మహావాక్యం दूसरा महावाक्य సామవేదంలోని साम वेद का చాందోగ్యోపనిషత్ चांदोव्योपनिषद నుంచి వచ్చిన మరో మహావాక్యం में से आया हुआ दूसरा महावाक्य తత్వమసి. तत्वमसि। అంటే मतलब నీవు కూడా అదే అయి ఉన్నావు. आप भी वही बने हो। మూడవ మహావాక్యం तीसरा महावाक्य అధర్వణ వేదంలోని अथर्वण वेद में का ముండకోపనిషత్తు నుంచి मुंडकोपनिषद का వచ్చిన మహావాక్యం में से आया हुआ महावाक्य అయమాత్మా బ్రహ్మ. अयमात्मा ब्रह्मा। నా ఈ ఆత్మ मेरा यह आत्मा ఏదైతే ఉందో जो है అదే బ్రహ్మ. वही ब्रह्म है। నాలుగవ మహావాక్యం चौथा महावाक्य ఋగ్వేదంలోని ऋग्वेद का ఐతరోపనిషత్తు నుంచి వచ్చిన ऐतरोपनिषद में से आया हुआ మహావాక్యం. महावाक्य మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పు, ఐతరోపనిషత్తు అని కరెక్ట్గా రాసుకోవాలిగా. ఉపనిషత్తు ऐतरोपनिषद నుంచి వచ్చిన में से आया हुआ మహావాక్యం महावाक्य ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. प्रज्ञानम ब्रह्म। అంటే मतलब పైవన్నీ తెలుసుకోవడమే ऊपर के सभी विषय को जानना ही ప్రజ్ఞానం. प्रज्ञान है। ఆ ప్రజ్ఞానమే బ్రహ్మ. वह प्रज्ञान ही ब्रह्मा है। ఈ మహావాక్యాలు, ये महावाक्य, వీటి అర్థాలు इनका अर्थ బ్రహ్మర్షి పత్రి గారు ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी మనకు వివరించడం జరిగింది. हमें विवरण दे चुके हैं।
ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పారంటే और उन्होंने ये कहा है, ఈ మహత్తర మహావాక్యాల इन महत्तर महावाक्यों का సారాన్నంతా पूरा सारांश మళ్ళీ ఒకే వాక్యంలో फिर से एक ही वाक्य में చేర్చి చెప్పడం జరిగింది. बदलकर बताया गया है। అదేమిటంటే वो ये है, సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ. सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, అంటే मतलब ఈ సృష్టిలో ఉన్నదంతా బ్రహ్మమే. इस सृष्टि में जो भी है वह ब्रह्मा ही है, ఉన్నది అంతా जो भी है वह सब బ్రహ్మమే తప్ప మరేమి కాదు. ब्रह्मा के सिवा और कुछ नहीं है। అలాగే उसी వేదాల్లో ఇంకొక వాక్యం కూడా చెప్పబడింది. वेदों में और एक वाक्य भी बताया गया है। అదేమిటంటే वो ये है, బ్రహ్మ మూలం మిదం జగత్. ब्रह्म मूलम इदम जगत, ब्रह्म मूलम इदम जगत, అంటే ఈ జగత్తుకు मतलब इस जगत को మూలము मूल ఆధారము आधार బ్రహ్మమే. ब्रह्मा ही है, मतलब इस जगत का मूल और आधार ब्रह्मा ही है। ఈ వాక్యాల సారం అర్థమైతే చాలు. इन वाक्यों का सारांश यदि समझ पाते हैं तो ये काफी है। భగవంతుడు ఎవరో కాదు, भगवान कोई और नहीं है, భగవంతుడు ఎవరో కాదు, भगवान कोई और नहीं है, నేనే ఆ భగవంతుడు मैं ही वह भगवान हूँ, అని తెలుస్తుంది. ऐसा प्रतीत होता है। అందుకే పత్రిజీ इसीलिए पत्री जी మనమంతా దేవుళ్ళము అని చెప్తూ ఉంటారు. हम सब भगवान हैं ऐसा बोलते रहते हैं। మనల్ని हमें మై డియర్ గాడ్స్ అని కూడా సంబోధిస్తారు. माय डियर गॉड्स नाम से भी संबोधित करते हैं। ఆయనకు వేదాల సారమంతా తెలుసు కాబట్టే. उनको वेदों का पूरा सार पता है, इसीलिए। కానీ గొప్ప గొప్ప పండితులంతా लेकिन सभी महान पंडित ఏం చెప్తారంటే ऐसा बोलते हैं, దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు, भगवान कहीं और है, ఆయన చాలా గొప్పవాడు, वे बहुत ही महान हैं, మనం మానవులం, हम मनुष्य है, मानव है, మన కష్టాల్లోంచి బయటపడాలి అంటే हमारे मुसीबतों से हमें बाहर आने के लिए ఆ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, उस भगवान को आश्रय लेना है, ఆయన పూజించాలి उनकी पूजा करना है, అని చెప్తూ ఉంటారు. ऐसा बोलते रहते हैं। ఈ పండితుల యొక్క ఉద్దేశం इन पंडितों का उद्देश्य భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నాడని. भगवान कहीं और है ऐसा मानना है। కానీ వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే लेकिन वेद यह कहते हैं ఆ భగవంతుడు మనమే అని. वह भगवान हम ही है। అంతేకాదు इतना ही नहीं, అందరూ सभी అన్ని జీవులు सभी जीव భగవంతుడే అని కూడా చెప్తున్నాయి వేదాలు. भगवान ही है ऐसा कहते हैं वेद।
అంతేకాదు అందరూ అన్ని జీవులు భగవంతుడే అని కూడా వేదాలు చెప్తున్నాయి. उतना ही नहीं, सभी सभी जीव भगवान ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। అందుకే పత్రిజీ इसीलिए पत्री जी ఏ జీవిని హింసించద్దు, किसी भी जीव का हिंसा नहीं करना है, ఏ జంతువుని హింసించద్దు, किसी भी जानवर का हिंसा नहीं करना है, ఏ పక్షిని చంపద్దు, किसी भी पक्षी का वध नहीं करना है अथवा मारना नहीं, पक्षी को मारना नहीं है, వాటి మాంసం భక్షించద్దు, उनका मांसाहार नहीं करना है, అని చెప్తున్నారు. ऐसा कहते हैं। కారణం कारण అన్నీ భగవంతుడే కనుక. सब भगवान ही है, इसीलिए మరి ఈ విషయం వేదాల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. तो यह विषय वेदों में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। ఇది అర్థమైన వారు जिनको यह समझ में आता है, ఏ జీవిని హింసించరు, किसी भी जीव को हिंसा नहीं करेंगे, ఎవరిని అవమానించరు, किसी का भी अपमान, किसी को भी अपमानित नहीं करेंगे, బాధించరు. बाधा नहीं पहुंचाएंगे। అందరూ ఒకటే, सब एक ही है, అంతా ఒకటే सब कुछ एक ही है, అన్నది తెలుసుకుని यह जानकर దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తారు. उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं। ఈ స్థితి రావాలి అంటే यह स्थिति प्राप्त करने के लिए, ఇది అర్థం కావాలి అంటే इसे समझने के लिए ఎవరికి వారు अपने आप को శ్వాస మీద ధ్యాస, श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ధ్యానం చేయాలి. करके ध्यान करना है। అటువంటి ధ్యానం ద్వారా इस तरह का ध्यान से తన అంతరంగంలో उनके अंतरंग में అన్వేషిస్తే अन्वेषण करके దీనికి సరైన సమాధానం లభిస్తుంది. इनका सही समाधान मिलता है, సరైన సమాధానం లభిస్తుంది. इनका सही समाधान मिलता है। బయట వెతికితే ఏమీ తెలియదు, बाहर ढूंढने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। అంటే భగవంతుని గురించి ఏమీ తెలియదు. मतलब भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। ఎన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు, ఎన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించినా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. कितने भी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने से भगवान को जान नहीं पाओगे। గైడింగ్ మెడిటేషన్ చేసినా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. गाइडिंग मेडिटेशन करने से भी भगवान को जान नहीं पाएंगे। కారణం कारण గైడింగ్ మెడిటేషన్లో गाइडिंग मेडिटेशन में అంతరంలోకి వెళ్ళలేరు. अंतर में
प्रवेश नहीं कर सकते हैं। అది ఒక్క శ్వాస మీద ధ్యాస వల్ల మాత్రమే సాధ్యం. यह सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने मात्र से ही संभव है। మరి ఇంతటి జ్ఞానాన్ని మార్గాన్ని మనకి ఇచ్చిన పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. तो इतना महान मार्ग हम तक पहुंचाने के लिए पत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। మరి ఈ రోజు तो आज का यह दिन మహావాక్యాలు చెప్పుకున్నాం. आज के दिन हम ये महावाक्य बताए हैं। రేపు कल ఈ మహావాక్యాల అర్థం తెలుసుకుందాం. इन महावाक्यों का अर्थ समझेंगे। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। तो आज का यह हिंदी संदेश यहाँ पे समाप्त होता है। तो सबसे पहले मैं निखिल जी को आमंत्रण देता हूँ कि वह अपना अभिप्राय बताएंगे। नमस्ते निखिल जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। तटवर्ती जी को प्रणाम। నమస్తే. नमस्ते। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे संत ज्ञानेश्वर जी की हिंदी नेट पे मिल गई है। कल मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है। ఓ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Yesterday I could get it. ఓ So if any you understood the messages and you are in that interest only. Definitely yes sir, you will gain more and great knowledge. If you have Yes, that sir. interest. I'm trying to get the hard copy also, Hmm. and I'll also visit the place of his birth. Okay, okay. It's, Very nice. thank you so much for guiding. Thank you so much. एंड इन आज के उसमें जो बताया है ये ब्रह्म वाक्य के संदर्भ में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दूसरा महावाक्य सामवेद चांदोक्य उपनिषद से है, तत्वमसि। इसका अर्थ है आप भी वही बने हो। तीसरा महावाक्य अथर्ववेद से है और मांडुक्य उपनिषद से भी आया है। इसका है अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा यह आत्मा जो है वही ब्रह्म है। चौथा महावाक्य ऋग्वेद ऐतरेय उपनिषद से आया है। वह इस प्रकार है, प्रज्ञानम ब्रह्म, तात्पर्य ऊपर के सभी विषयों को जानना, वह प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। इन यह महावाक्यों इसका अर्थ ब्रह्म ऋषि हमें विवरण दे चुके हैं और हमें ये कहा है, पूरा सारांश एक ही वाक्य में बताया गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसका अर्थ है इस सृष्टि में जो भी है वह ब्रह्मा है, जो भी है वह सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं। ब्रह्म मूलम इदम जगत, इस जगत का मूल और आधार ब्रह्म ही है। इस वाक्य का सारांश समझ गए तो बहुत श्रेष्ठ है। मैं ही भगवान हूँ ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए पत्री जी कहते कि हम सब भगवान हैं एंड माय डियर गॉड्स, इस तरह से वह सबको एड्रेस करते हैं। Yes sir. We will learn the meaning of these vakyas tomorrow. Yes sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much. Anupama. निकुल जी, अनुपमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किसी को पुस्तक चाहिए तो मैं सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ। Sir, you sent it to me also. Yes sir, I will do that sir. And send me also, Nikhil sir. Yes sir, I will do that man. Yeah. Anupama. हाँ, मैं पहचान गया आपको, जरूर भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अनुपमा जी, कोई इशू नहीं। Thank you. थैंक यू। प्रणाम सर। Hmm. सर
प्रणाम सर राघव सर, और प्रणाम प्रणाम सर। आज का जो सर ने बताया, ये 3 महावाक्य जो है उनका चार- पूरा चार। एक सार जो है। 4 महावाक्य, 3 नहीं। जी हाँ, 4 महावाक्य का सार एक में है समाया हुआ कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा। मतलब कि इस सृष्टि के अंदर जो जो भी चीजें हैं उन सब के अंदर मैं ही समाया हुआ हूँ। मैं मतलब ब्रह्मा, और मैं ब्रह्मा ही सब में है, तो सभी ब्रह्मा है, ऐसा ब्रह्म है। मैं अपने तरह से इसको बताऊंगी सर। कल जो है मैं बहुत परेशान थी इवनिंग से, क्योंकि मेरे घर में एक डिलीवरी होनी है। तो वो डिलीवरी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैं बहुत चिंतित थी, बहुत चिंतित थी। आज सुबह जब मैं ध्यान में बैठी, तो मेरा दिमाग ना वहीं घूम रहा था। बट जब मैं बैठी ध्यान में, तो ध्यान में बैठने के बाद में ना मैं धीरे धीरे रिलैक्स होती चली गई। और रिलैक्स होने के बाद में जब मैं ध्यान से उठी, तो मेरे सामने उस जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन जो है, ये जिसको बोलेंगे कि हाँ मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गई और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने आया कि नहीं, जो हो रहा है वो प्रॉपर और ठीक तरीके से हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसी एक चीज जो मुझे समझ आई, मतलब जो मुझे अनुभव हुई, ये चीज कि सृष्टि के अंदर हम ये सोचते हैं कि वो परमात्मा है जो हमको बहुत सारी चीजें बताएगा, वो अलग है हम अलग हैं, ऐसा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ही वो सारी चीजें मौजूद हैं। बस हमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करके, ये निशब्द ध्यान जब हम करेंगे, तो ग्रेजुअली हम उस स्टेट में पहुंच जाएंगे जिस स्टेट में हम हैं एक्चुअली। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ये मेरा आज का सार है। థ్యాంక్ యూ మేడం. धन्यवाद अनुपमा जी। చిరంజీవి, यस सर। ఏమైనా కొంచెం అంతలా డీటెయిల్గా అక్కర్లేదు కానీ కొంచెం వివరించగలవా? यस सर। వివరించు. మేడం, ఈ రోజు మీరు చెప్పిన 4 వేదాల మహావాక్యాల గురించి చెప్పారు. ఆ 4 వాక్యాల సారాంశం ఒకటే, మరి ఒక మహావాక్యం చెప్పారు, సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ. అంటే ఈ ఈ అంతా కూడా పై పై వాక్యాల సారాంశం మొత్తం బ్రహ్మమే, ఆ బ్రహ్మ నేనే అని కూడా మళ్ళీ చెప్పారు. నిన్నటి రోజు మా ఇంట్లో ఒక డెలివరీ ఉన్నందువల్ల మేమంతా కొంచెం కుతూహలంగా, కొంచెం టెన్షన్‌లో ఉన్నాము. దాని గురించి కొంచెం ఆలోచనలో ఉన్నాము. అయితే సాయంత్రం వరకు అది కొంచెం నాకు అది అర్థమైపోయింది. ఏది జరిగినా అది మన మంచికే జరుగుతుంది. అంతా ఓకేనే అవుతుంది అనుకున్నాను. ఈ ప్రపంచమంతా భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు అని అనుకుంటారు. కానీ భగవంతుడు మరెక్కడ లేడు, మనలోనే ఉన్నారు అనే విషయం అర్థమైపోయింది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఆయుష్. नमस्ते आयुष जी। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आपका आवाज क्लियर है। ओके। सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम विकृति प्रकृति संस्कृति के 86वें एपिसोड पे हैं। पिछले 4 एपिसोड से हम ब्रह्म ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा कल हमने बात की थी, आज हमने वेदों के 4 महावाक्यों को यहाँ पे सारांश रूप में समझा है। कल जब हमने बात की थी तो ये था कि वेदों में जो भी बताया गया है वह सत्य है, अथवा जो भी सत्य है वह सब वेदों में है, उसके बाहर कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब हम वेदों का सार निकालते हैं, अथवा ऋषियों ने जब वेदों का सार निकाला, तो उस चारों वेदों से एक एक वाक्य को लेकर उन्हें महावाक्य कहा। पहला महावाक्य यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से आया है, जिसमें कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात
मैं ही वह ब्रह्म हूं। दूसरा महावाक्य सामवेद के छंदोग्योपनिषद से आया है, तत्वम असि, आप भी वही हो, अर्थात आप भी ब्रह्म हो। तीसरा अथर्ववेद के मुंडोकोपनिषद से आया मांडोकोपनिषद मांडोकोपनिषद से आया है, अयात्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, सॉरी सर, अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। चौथा ऋग्वेद के ऐतरोपनिषद से आया है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अर्थात उपरोक्त सभी विषयों को समझना ही प्रज्ञान है और वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इन चार महावाक्यों का भी सारांश अगर एक वाक्य में लिया जाए तो वह है सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह ब्रह्म है। वेदों में एक और महावाक्य है, ब्रह्म मूलम इदम जगत, अर्थात इस जगत का आधार ब्रह्म है। इन वाक्यों का जब हम सारांश निकालते हैं, जब इनको सरलार्थ करते हैं, तब यह समझते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अलावा इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह ब्रह्म है। इसलिए पत्री जी हम सभी को भगवान कह के संबोधित करते थे। वे सबको कहते थे माय डियर गॉड्स। परंतु सभी पंडित स्वयं को अलग और भगवान को अलग समझते हैं। उनके अनुसार हमारी मुसीबतों का जो हल है वह किसी बाहरी भगवान के पास है। उस भगवान का हमें आश्रय लेना है, वह उसकी पूजा करनी है। परंतु वेद इसके उलट कहते हैं, मैं ही भगवान हूं। इतना ही नहीं, मेरे अन्यत्र जितने भी जीव हैं वे सभी भगवान हैं। तो जब सभी जीव भगवान हैं तो हमें सभी जीवों का ख्याल रखना है, जीव हिंसा नहीं करनी है, किसी जीव को बाधित नहीं करना है, किसी जीव को परेशान नहीं करना है, किसी का भी अपमान अनादर नहीं करना है। वह भगवान पक्षी में भी है, इसलिए किसी पक्षी का मांस नहीं खाना है। इसी कारण से पत्री जी सर्वथा मांसाहार के खिलाफ थे। मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान हमें केवल एक ही तरीके से मिल सकता है, वह पत्री जी द्वारा सिखाया हुआ आनापान सती ध्यान, अर्थात श्वास पर केंद्रित होकर ध्यान करना। जब हम यह तीव्रता के साथ यह ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे यह ज्ञान हमें स्वतः ही मिलता जाएगा। परंतु बाहर ढूंढने से यह ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में जाकर यह ज्ञान नहीं मिलेगा। गाइडेड मेडिटेशन करके जिस ध्यान में हम मन की सतह पर ही रुक जाते हैं, उस मेडिटेशन को, उस ध्यान को करके भी यह ज्ञान हमें कभी नहीं मिलेगा। कल के दिन हम इन महावाक्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।
गीता मैडम। नमस्ते गीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। तटवते रागराव सर, चिरंजीवी सर आपको प्रणाम। सभी उपस्थित मास्टर्स को मेरा प्रणाम। सर, आज बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एडिशनल नॉलेज पाई ब्रह्म ज्ञान के ऊपर। आज 5वां एपिसोड है, तो आपने एक एडिशनल नॉलेज मुझे दिया। वो यह है कि कल तक आप 4 वेद और वेद वाक्य इतना ही तक हम समझे। आज ये वेद वाक्य सारांश कहाँ से आया है आपने बताया। पहला यजुर्वेद ब्रह्म बृहद्वारकोपनिषद में से आया है। ये एडिशनल नॉलेज है, ये वर्ड मैं अभी पहली बार सुन रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। उसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम सब ब्रह्म ही है। दूसरा मैं फास्ट जाऊंगी, मैं फास्ट बताती हूँ। सामवेद चांदोग्य उपनिषद से निकाला हुआ वाक्य तत्वमसि, मतलब आप ही वही है, आप भी वही है। तीसरा महावाक्य अथर्वण वेदों में से मांडोपनिषद, ये वाक्य भी, वर्ड भी मैं पहली बार सुन रही हूँ। उसमें से आया हुआ महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्मा, मतलब मेरा यह आत्मा जो है वही ब्रह्म है। और चौथा महावाक्य ऋग्वेद का ऐतरोपनिषद, ये दूसरा चौथा एडिशनल वर्ड आई हैव लर्न टुडे में से आया हुआ है महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा, मतलब ऊपर को सभी विषय में जो हम तक अभी तक सुना है, जानना है, वो प्रज्ञानम, वह प्रज्ञान ही ब्रह्मा है। यहाँ मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए सर, मैं ये ठीक नहीं समझ पाई, आगे मैं जा रही हूँ। प्रज्ञानम मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आए सर। आगे आप बताते हैं यह महावाक्यों, इनका अर्थ ब्रह्मर्षि पत्री जी हमें बहुत ही विवरण दे चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि महावाक्यों का पूरा सारांश फिर से एक वाक्य में बताकर बदल कर बताया है। वो यह है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, मतलब इस सृष्टि में जो भी है ब्रह्मा ही है। ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। वेदों में और एक वाक्य बताया है, वो है ब्रह्मम मूलम इदम जगत, मतलब इस जगत को मूल आधार ब्रह्मा ही है। तो भगवान और कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए पत्री जी हम सब भगवान है बोलते रहते हैं, इसलिए हम सबको माय डियर गॉड्स नाम से संबोधित करते हैं। आज मुझे और अच्छी तरह से समझ में आए पत्री जी, हम सबको क्यों माय डियर गॉड्स कहते हैं। हम भी उस स्थिति तक आना चाहिए, जैसे पत्री जी हम सबको गॉड समझते हैं, हम भी उस स्थिति तक आने के लिए पत्री जी ने जो मार्ग बताया है, श्वास के ऊपर ध्यान वो केंद्रित करके ध्यान करना है, तभी हम अंतर पहुंच सकते हैं। भगवान को मंदिर में ढूंढने से, गाइडिंग मेडिटेशन से हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति पाने के लिए हम श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना ही चाहिए। पंडितों को ये सब मालूम नहीं है, वो समझते हैं भगवान अलग है, हम अलग है, पूजा करने से ही भगवान मिलते हैं। ये सब अंधविश्वास है, अज्ञान में रहते हैं। और एक बात सर, जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ, सज्जन संगतें करती हूँ, आप लोग बार बार कहते हैं सब में भगवान है, सभी में भगवान है, ये भगवत गीता में भी कहा है। तब से मैं जो कुछ किचन में देखती हूँ, मेरे किचन यानी खाना बनाना जगह है ना, वहां जो कुछ कीड़े मकोड़े, मूंगी, कॉकरोच, किसी को भी मैं मारना छोड़ दिया, सबको ऐसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ खिड़की से। ये बदलाव मुझे आया है सर, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम लोग समझते हैं कि मैं शाकाहार हूँ, मांस खाती नहीं हूँ, इससे काफी नहीं है। छोटे छोटे मूंगी, कॉकरोच, फ्लाइज, हाउस फ्लाई कहते हैं, और मच्छर, इसको भी मैं मारना बंद किया है। ऐसे उसको हाथ से भगा देती हूँ, जितना तक होती हूँ बिल्कुल उसको मारती नहीं, क्योंकि मैं बार बार यह स्थिति में आना चाहती हूँ। जो कुछ मैं देखती हूँ
मेरे इसके सराउंडिंग्स में कभी कभी वेजिटेबल्स में भी ये आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको भी मैंने मारना बंद किया, उसको ऐसे ही खिड़की से बाहर निकाल के फेंक देती हूँ। तो ये स्थिति हम तक पहुंचना चाहिए, हम इस स्थिति पर आना चाहिए। इसलिए पत्री जी, किसी को भी जीव जंतु को हिंसा, जानवर हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, किसी को भी हम मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे सर। और यह जानकर उनके अनुकूल में रहना चाहिए, किसी भी जीव जंतु जानवर हो उनके अनुकूल में रहना चाहिए। और एक अहम बात आपने बताई, यह स्थिति प्राप्त करने के लिए और इस स्थिति को समझने के लिए हमें श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करके साधना करना ही चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ही है निशब्द ज्ञान। बल्कि गाइडिंग मेडिटेशन से या कहाँ क्षेत्राടन करने से, भगवान को दर्शन करने से हमें भगवान नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात है सर, आज मुझमें यहाँ आने के बाद बहुत से बदलाव आ गए हैं मन की स्थिति। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू गीता जी। ఎవరు కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు? और भी कोई अभिप्राय बताना चाहते हैं और यहाँ पे उपस्थित है तो कृपया हैंड रेस करेंगे। రవి చూడు, కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు? ఉన్నారు, ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు నేను చూశాను. చూడమ్మా సింధు. హిందీ వాళ్ళేనా లేకపోతే సార్ వాళ్ళే. లేరు సార్, లెఫ్ట్ అయిపోయింది. సరే, క్లోజ్ చేసేమ్మా చిరంజీవి. ओके सर, तो इस तरह से आज का यह हिंदी सेशन को यहाँ पे समाप्ति घोषणा करते हैं। मिलते हैं कल सुबह के प्रातःकालीन ध्यान व गुरु जी का दिव्य संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।